آغا شاہ حسین قزلباش نے یوم عاشور کی اختتامی دعا کرائی۔ میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ میرے مولا کرم کر دے ہمارے اوپر، اور میرے مولا کرم کر دے میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کی خیر کر میرے مولا ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے، دشمن عناصر جو ہے جو پاکستان کے اوپر گندی نظر لے کے بیٹھے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے میرے مولا۔ تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے، سب پہ اپنا کرم کر دے میرے مولا۔ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت کاملہ عطا کرنا، صحت کلی عطا کرنا میرے مولا صحت دے، تندرستی دے، عزت دے، وقار دے، ہمت دے، حوصلہ دے، طاقت دے، خوشحالی عطا کر دے میرے مولا۔ آمین ثم آمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حضرت امام حسین روڈ گلبرگ میں مجلس شام غریباں برپا کی گئی، عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تیری بارگاہ میں حسین ایسے آئے گا، اجرکم اللہ۔ ایک ظالم نے کندھے پہ تلوار ماری، ایک ظالم نے پہلو میں خنجر مارا، کسی نے نیزہ مارا، منہ کے بل زمین کربلا پہ گر گئے۔ شبر ملعون آگے بڑھا، امام نے جناب زینب کو اشارہ کیا، ارے بہن خیمے چلی جا، اب برداشت نہ کر سکو گی۔ شمر ملعون آگے بڑھا، اپنا قدم حسین کے سینے پہ رکھا۔ میرے مولا کی آنکھوں میں خون تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ پکارے، تو کون ہے؟ یہ جس جگہ تو نے قدم رکھا ہے یا رسول خدا دیر تک بوسے دیتے تھے۔ کہا میں شمر ہوں، کہا مجھے پہچانتا ہے، کہا تم زہرا کے بیٹے حسین، زہرا کے بیٹے حسین ہو۔ ایک مرتبہ زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ضربیں چلانا شروع کی، ارے کالی آندھیاں آئی، خوشی کے شادی آنے بجے۔ جناب زینب نے امام سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد یہ کیسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اب جو خیمے کا در اٹھایا، نوک نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ خالی گھوڑا واپس آیا، ارے بیویوں نے نوحہ کیا، چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کے مرنے سے پہلے کسی نے اسے پانی دیا تھا یا پیاسا مار ڈالا۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد ظالموں نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، ارے خیموں کو آگ لگائی۔ جناب زینب ایک خیمے میں جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے خیمے میں، اس کے بعد تیسرے خیمے میں۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا بی بی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ کہا میرا بیٹا زین العابدین۔ شاید گھبرا گئی تھی علی کی بیٹی، خیمہ بھول گئی تھی۔ یہ ظالم گھوڑوں پہ سوار ہو کے بیویوں کے سروں سے چادریں نوچتے رہے۔ عصر کا وقت آیا، تھوڑا سا پانی پہنچا، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں پانی پی لو۔ ایک چھوٹی سی 3 سال کی بچی کو جناب سکینہ کو بلایا، بیٹی یہ لے کوزہ پانی پی لے۔ بچی نے ایک مرتبہ کوزہ اٹھایا، مقتل کا رخ کیا۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی میرا بابا بڑا پیاسا تھا، میرا بابا بڑا پیاسا تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت جب جناب سکینہ نہ ملی، مقتل کا رخ کیا، آواز دے رہی ہوں گی سکینہ سکینہ، ایک ایسے لاشے پر پہنچی جو جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، جس میں پتھر بڑے زیادہ تھے۔ ایک چھوٹی سی بچی پاس لپٹی ہوئی تھی، پیار سے ہٹانا چاہا، اس نے کہا میں بابا کو چھوڑ کے نہ آؤں گی۔ بڑی بہن نے پیار سے جدا کیا، جلے ہوئے خیموں کے پاس جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی بہن نے پوچھا اے سکینہ یہ جس لاشے سے لپٹی تھی اس میں تو سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا بابا ہے؟ کہا میں تماچے کھانے کے بعد، ارے بالیاں نچنے کے بعد مقتل میں دوڑ رہی تھی بابا۔
لاشے سے آواز آئے الیہ الیہ یا بنیہ، الیہ الیہ یا بنیہ، یعنی سکینہ آجا بابا کے پاس۔ ماڈل ٹاؤن 145 سے بارگاہ سید نجم الحسن نقوی میں یوم عاشور کی قدیمی مجلس اعزاء شبی ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزادار ماتمی جلوس میں گریہ زاری، نواخوانی اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ حسین اس غریب کا نام ہے کہ جب اکبر نے زین چھوڑی تھی یا دشمنوں کے نرگے میں کھڑے ہو کے شبیر پوچھتا تھا کسی نے میرا اکبر اترتے دیکھا ہے؟ پتہ کوئی نہیں بتاتا تھا۔ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ علی اکبر کی لاش پہ شبیر کونیوں کے بال آئے یا علی کہتے ہوئے نہیں پتا چلتا تھا علی اکبر کو بلا رہے ہیں۔ امام بارگاہ المرتضیٰ کانگڑا والے پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر سے برآمد ہونے والا تزیہ کا جلوس اپنے مقررہ کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداران حسین ماتمداری اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ ہر سال 9ویں اور 10ویں کو تمام عزادار جو ہے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پولیس کی طرف سے بھی انتظامات جو ہے وہ مزید بہتر سے بہتر بنائے جا رہے ہیں اور یہ سب جو ہے وہ غم کی شکل میں سب سوگ بنا رہے ہیں۔ عزاداری اور ماتمداری اسی لیے کرتے ہیں جو واقعہ کربلا ہوا وہاں پہ بہت ظلم کیا گیا آل رسول کے ساتھ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ عمر اسلم۔ یوم عاشورہ پر ٹھوکر نیاز بیگ، امام بارگاہ ڈوگراں والا اور نواب صاحب علی رضا آباد سے شبی ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی جانب سے سینہ کوبی اور ماتم بھی کیا گیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جو انتظامیہ اس کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پر جو مجالس کو جو اس کے منتظمین ہیں جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے اپریشیٹ کیا انتظامیہ کو کہ انہوں نے ہر معاملے میں چاہے وہ صفائی کا ہے، چاہے اسٹریٹ لائٹ کا ہے، چاہے اسٹریٹ لائٹ کو جلانے کے لیے جنریٹر کا معاملہ ہے، پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، واسا کا ہے، 1122 کا ہے، ہیلتھ کا ہے، وابڈا ہے، ہر ایک کو اچھے انداز میں مینج کیا گیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لاہور کی تاریخی نثار حویلی میں مجلس عزا ہوئی۔ مرثیہ خوانوں نے شہدائے کربلا کو پرسہ دیا۔ فضا لبیک یا حسین کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ موچی دروازے میں ہونے والی مجلس کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوم عاشور پر نثار حویلی میں مجلس عزا ہوئی۔ نوحہ خوانوں نے مرثیہ خوانی کی۔ قمر عباس برادران نے اپنے روایتی انداز میں سوز و سلام پیش کیا۔ عزادار حسین علیہ السلام گریہ زاری کرتے رہے۔ تماچے بھی ہے کھائے، رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے، روتا ہے تیرے نثار حویلی میں ایک اور تاریخی مجلس ہوئی۔ بیلا برادران نے سوز و سلام پیش کیا۔ بابر علی بیلا اور امانت علی بیلا کے کلام نے اداس دلوں کو مزید رنجیدہ کر دیا۔ سننے والوں پر رقت طاری ہو گئی۔ خدا نے جس کو مرحبا اے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین محمد رسول اللہ کے لازوال جیسے گا حسین
नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके दीन हक को रहती दुनिया तक अमर कर दिया। यजीद मिट गया, हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। कैमरा टीम के हमरा अली रामे मोची गेट लाहौर। मिनहाजुल हुसैन जौहर टाउन में योम आशूर की मुनासबत से शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी तादाद में शरीक हुए। लंगर हुसैनी का एहतमाम और सबीलें भी लगाई गई। अल्लामा गुलफाम हुसैन हाशमी ने शाम गरीबा से खिताब किया। मिनहाजुल हुसैन से निकलने वाला शबीह जुलजना का जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ मरकज की जानिब रवां दवां रहा। अज़ादारों की जानिब से मातमदारी और जंजीर जनी की गई, जबकि जुलूस में अज़ादारान हुसैन बड़ी तादाद में शरीक हुए। जौहर टाउन इदारा मिनहाजुल हुसैन से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का जुलूस मरकज पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने नमाज मगरबैन अदा की, जिसके बाद मजलिस शाम गरीबा बरपा हुई। अल्लामा गुलफाम हुसैन हाशमी ने मसाइब अहले बैत बयान किए। ये जालिम कहते हैं जब मैंने पहली बार हुसैन के गर्दन पर, हुसैन की गर्दन पर 2 ज़रबे लगाई और खंजर उठाया, मैंने देखा कि हुसैन जमीन पर हाथ पांव मारने लगा। जब मैंने हुसैन को तड़पते देखा तो अब मेरे दिल में ख्याल आया कि ठहर ठहर कर हुसैन को ज़िबा करूं ताकि देखूं ज़हरा का लाल तड़पता कैसे है। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। वाक़या करबला हमें मसाइब बर्दाश्त करते हुए हक पर डटे रहने का दर्स देता है, जिसके तहत हुसैन के प्रचार का बोलबाला रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगा। कैमरामैन इफ्तिखार और खालिद मलिक के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। योम आशूर का जुलूस इख्तिताम पजीर होने पर सिटी 42 की मैराथन ट्रांसमिशन भी अपने इख्तिताम को पहुंची। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर, DC लाहौर और DIG ऑपरेशंस भी सिटी 42 की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। सिविल और सिक्योरिटी इदारों को आशूरा के जुलूसों और मजालिस के बेहतरीन इंतजाम करने पर खराज तहसीन पेश किया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, DC लाहौर उमर शेर चट्ठा, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और DIG ऑपरेशंस और उलमा इकराम की क़यादत में जुलूसों और मजालिस की निगरानी का सिलसिला जारी रहा। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि तमाम महकमों की काविशों से आशूरा का जुलूस पुरअमन तरीके से अपनी मंजिल पर पहुँचा। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस ने कहा कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों ने यकम मुहर्रम से आशूरा तक दिन रात फराइज सर अंजाम दिए। आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम मसालिक हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पुलिस एजेंसी, स्पेशल ब्रांच, CTD और जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, उन तमाम को ऑन बोर्ड करना और उनके साथ लिएजॉन करना, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। लेकिन इस दफ़ा हमने बहुत सारे ड्रोन कैमराज जो है ना वो इस्तेमाल किए हैं। हमारे पास तकरीबन कोई 800 प्लस जो है वो CCTV कैमराज है जो कि कॉन्स्टेंटली उसकी जो वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। 9,000 10,000 के करीब डिप्लॉयमेंट रही है हमारी। तो जिस तरह आज भी हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा थी, कल भी 10,000 से ज़्यादा, तो एट एनी गिवन डे 10,000, 11,000, 9,000 यही फिगर रही है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि MCL, पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, PTCL, महकमा हेल्थ, लेस्को, वासा, LWMC के एहलकारों ने यौम आशूर पर फराइज सर अंजाम दिए। LWMC का अमला था या MCL का अमला था या सिविल डिफेंस का अमला था या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे या फॉर दैट मैटर DC ऑफिस के लोग थे या 1122 के लोग थे, तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारी अमन कमेटी के मेंबरान थे जो कल से हमारे साथ हैं और अमन कारवान के अंदर बैठ के तमाम मजालिस में और तमाम जुलूसों में खुद बजाते खुद जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अमन का पैगाम दे रहे हैं। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने कहा कि DC ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया जहां शहर के जुलूसों और मजालिस की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये सब टीम वर्क के साथ ऐसे तरीके से अंजाम पाती हैं और इस दफ़ा भी बड़ी अच्छी टीम है हमारी और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था उलमा इकराम के साथ और तमाम ऑर्गेनाइज़र्स जितने मजालिस के थे, जितने लाइसेंस होल्डर थे, उनके साथ हम DC ऑफिस में मिले, पुलिस लाइन में मिले, उनके साथ हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन था। हमने अपनी टीमों से उनके मसाइल आइडेंटिफाई किए फील्ड में जाके। शब आशूर को निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मोची गेट, चौक नवाब साहब, चौहट्टा मुफ्ती बाकर, कश्मीरी बाजार, रंग महल, सोहा बाजार, सैयद मिठा बाजार, तहसील बाजार, भाटी गेट और बाजार हकीमा से गुजरता हुआ भाटी गेट इमाम बारगाह करबला गामे शाह में पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के साथ राउदुल शाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर।
यौम आशूर पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी करने कब्रिस्तान पहुँच गई। शहरियों ने अपने अजीज़ो अकारब की कब्रों पर फूल भी डाले और फातिहा खानी भी की। 10 मुहर्रम उल हराम पर अजीज़ो अकारिब के साले सवाब के लिए शहरी बड़ी तादाद में कब्रिस्तान पहुँचे। शहरियों ने बिछड़ने वाले प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। बच्चों और बड़ों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और अल्लाह ताला से मगफरत तलब करते रहे। शहीदान करबला के लिए हम दुआ खैर के लिए अपने अपने अजीज़ो अकारब, अपने अपने रिश्तेदार, यार दोस्त, अहलो याल की कब्र अनवर पर आते हैं और दुआ खैर करते हैं। इंसान की अपनी एक फ़िक्र का मौका होता है, अपनी एक एहतसाब का मौका होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमने इस दुनिया में रहना नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम जो है ना, ये हमारे मज़हब में, हमारे दीन में ये एक इतना बड़ा वाक़या है कि जो जब तक ये दुनिया ये हम लोग नहीं भूल सकते। और इस दिन हम लोग अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए फातिहा खानी करते हैं। यौम आशूर का दिन अपने प्यारों से बिछड़ने की याद को ताज़ा करता है। इसी वजह से लोग कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों पर जरूर जाते हैं। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने यौम आशूर पर कुर्बान लायंस में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने डिजिटल कैमरों के ज़रिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया और CCTV कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग के निज़ाम का मुआयना किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने जदीद कैमरों से मरकज़ी जुलूसों के रूट्स का भी जायज़ा लिया और डिजिटल वॉल पर कैमरों के ज़रिए लाहौर के दीगर इलाकों के जुलूसों का मुशाहदा भी किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आखिरी जुलूस के शुरका के पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने तक अहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहें। बाद अज़ां वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में यौम आशूर की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक़द किया गया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने मरकज़ी जुलूसों के रूट्स पर कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत मियां असलम इकबाल का मुख्तलिफ इलाकों में इमाम बारगाहों का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात का जायज़ा लिया और मातमी जुलूसों की मॉनिटरिंग भी की। मियां असलम इकबाल ने यौम आशूर पर ठोकर न्याज बेग, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों में इमाम बारगाहों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा और पुलिस अफसरान भी हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर का कहना था, इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर इदारों ने मुहर्रम उल हराम के दौरान मसाली इंतज़ामात किए। मजालिस के मुंतज़मीन ने भी सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात को सराहा है। शहर में मातमी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार मामूर हैं, जबकि मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से की जा रही है। मियां असलम इकबाल ने कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। 13 अगस्त को नेशनल हॉकी स्टेडियम में PTI के जलसा की तैयारियां। सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद का जलसागाह का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। 13 अगस्त को नेशनल हॉकी स्टेडियम में PTI के जलसे की तैयारियों के सिलसिले में सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद ने जलसागाह का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि 14 अगस्त को हम अपना 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं और इस सिलसिले में हम एक शानदार तक़रीब करने जा रहे हैं। अभी जलसे के मुकाम का हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, ताहम मुख्तलिफ मुकामात का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई जलसा नहीं बल्कि आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आज़ादी का जश्न मनाने के अपने तौर तरीके होते हैं। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुहर्रम उल हराम के हवाले से न्यू अस्पताल एमरजेंसी का दौरा। प्रोफेसर महमूद अयाज ने एमरजेंसी में शोबा मेडिसन, सर्जरी समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया।
वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास ने एमरजेंसी में शोबा मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबों का दौरा किया और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर प्रोफेसर महमूद अयास ने कहा कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में म्यू हस्पताल के शोबा एमरजेंसी में 40 बेड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। एमरजेंसी में आने वाले जख्मियों और अज़ादारों को तमाम तरतीबी इमदाद दी जाएगी, जबकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में म्यू हस्पताल इंतज़ामिया और किंग एडवर्ड की फैकल्टी मौजूद है और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।